Hello and hi everyone, welcome to the session. This is Varsha ma'am and I welcome all of you to this super duper amazing session on how can you self-analyze your mock test, your own performance, how and what to do. ठीक है? So today I'm going to discuss 3 important points. Yes, just 3 important points, not taking a lot of your time. 3 important points on how you can analyze yourself, how you can improve it, and what should be your action plan on that. Some concrete steps I'm going to discuss today. So for that, stay tuned till the end of the video to get these amazing points, and I'm sure, I'm guarantee that by the end of the session you'll be motivated enough. You will have some really new techniques, new ways which will help you in your 2-year journey or 1-year journey or whatever journey you are left with this. And people, this is not just for your class 11th and 12th, this is for your school section, for the कॉलेज सेक्शन आफ्टर 12th स्टैंडर्ड, है ना, यूजी वाले बच्चों के लिए, सभी के लिए है, जहाँ पे आप लोग टेस्ट देने के बाद क्या करना चाहिए इसके बारे में सीखने वाले हैं आज. ठीक है, सो डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, योर cousins, your relatives, so that everybody gets the benefit of this video. Also guys, this is VNCERT 11-12 channel where we teach everything of your 11-12 syllabus from NCERT. Complete care is taken with the best teachers, Sakshi ma'am, Amrit sir, Nikhil sir and myself for all 4 subjects VCMB. So make sure that you attend all the sessions and you have to be then just relax free, because everything will be done by us for you people. So Telegram group will give you all the PDFs of sessions, है ना, handwritten notes, everything. And do like the video and subscribe to our wonderful community, wonderful family of NCERT 11-12, so that you keep yourself updated with all the sessions that are coming. Press on the bell icon. Chalo. Before I actually start with the session, let me tell you what all things Vedantu are doing for you, like just like the way I am taking a session for you today to help you out on students' demand. This is a session which will help my students by Vedantu to learn. है ना, thus education will not stop. That is what the motto of Vedantu is, and to take care of that, we have raised 15 crores for 12,000 students who we will adapt academically, है ना, उनको हम academic adoption कर लेंगे. अब ये ऐसे लोग हैं जो these are the students who during the pandemic, during the COVID have lost the bread and butter earner of the family. जो घर में कमाने वाले इंसान थे, उनको ही उनका साया जिसके सर से हट चुका है, ये उन लोगों के लिए बच्चों. ठीक है, so those students now they have nothing for the education, so that should not stop, and hence Vedantu has come up with the super amazing initiative. You can learn about it more on www.helpindialearn.in. You can register yourself if you feel कि आपको ज़रूरत है, या फिर आपको पता है कोई और जिसको इसकी ज़रूरत है, आप उसके साथ शेयर कर सकते हो ये चीज़. और अगर आप चाहते हो हेल्प करना तो वो भी कर सकते हो. It's all open for us. Next very important thing is the JEE. Now people, we know it's high time. The 12th class board exams has been cancelled. Now what is the thing that we are going to do in this period? It is pure focus on your JEE and NEET for NEET students. Now your pure focus on JEE का मतलब क्या होता है? क्या हम 12th बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो गया, JEE भी कैंसिल हो जाएगा? ऐसा लगता है आपको? ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है. ठीक है, JEE तो होगा भैया, भाई साहब, किसी भी तरीके से. और इस टाइम पे बच्चे इतनी तगड़ी फाइट मार रहे हैं जेई के लिए कि बस पूछो मत. तो बच्चों, अगर आपको भी ये वेदांतु के क्रैश कोर्स में एनरोल करना है तो आपको क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे इससे, आप क्या ये वर्थ है आपके लिए, क्या ये आपका रैंक इंक्रीज करेगा, इज़ इट वर्थ टू पे दैट मच मनी. ठीक है, ये दीज आर द क्वेश्चंस दैट कम्स टू द माइंड. So I am going to answer few of those things. We are learning JEE का crash course. We are teaching the students not from today, but it has been already 6 months. हमारे n number of batches have been formed, n number of students have enrolled themselves. We have so many brilliant best teachers from the country to help you in this preparation. ठीक है, so यहाँ पे क्या होता है,
कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहिए, क्योंकि हमने 11th-12th में पढ़ लिया, कैसे भी पढ़ लिया, जेई की इतनी अच्छी प्रिपरेशन की नहीं, अब हमें लास्ट मोमेंट पे चाहिए कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। तो क्या हमें कॉन्सेप्ट डिटेल में पढ़ाया जाएगा यहाँ पे? यस, यू विल बी टॉट द कॉन्सेप्ट वट एवर इट इज इन डिटेल। क्या हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स लिए जाएंगे प्रैक्टिस के लिए? यस। विल यू बी गिवन शॉर्टकट्स फॉर देम? वेरी मच यस यस यस। तो सारे क्वेश्चंस के लिए शॉर्टकट्स, टिप्स, ट्रिक्स दिए जाएंगे, हाउ यू शुड अटेम्प्ट योर पेपर, व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी इन दिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बिकॉज दिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम मीन्स अ लॉट अबाउट स्ट्रैटेजी, नॉट जस्ट मेहनत मेहनत मेहनत, बट स्ट्रैटेजी की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है हमें बच्चों। ठीक है, तो यू विल हैव द प्रॉपर टेस्टिंग एनवायरनमेंट। अगर टेस्ट होता है तो हम बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, आप जानते हो क्यों नहीं। और टेस्ट मतलब ऐसा वैसा टेस्ट थोड़ी देंगे, मतलब 10 बच्चों में टेस्ट दे दिया, आप फर्स्ट आ गए, विल दैट मीन कि आप जेई क्रैक करके फर्स्ट लेकर आओगे? नहीं। टेस्ट का मतलब ये होगा कि आप लाखों बच्चों के साथ दे रहे हो एग्जाम और आपको आपका ऑल इंडिया रैंक पता चलेगा। इट विल बी ए प्योरली सीबीटी बेस्ड टेस्ट, है ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जैसा जेई में होगा वैसा ही सेम मॉडल पे वेदांतु में आपको टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, आपको ऑल इंडिया रैंक मिलेगा। टाइमिंग प्रेशर के अंदर जब आप काम करना शुरू करोगे, यू विल गेट द डिटेल्ड एनालिसिस। यस, आज का सेशन जैसा है, आपको वहाँ पे रेडीमेड एनालिसिस मिलेगा कि आपने किस टॉपिक पे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, किस टॉपिक पे कम टाइम स्पेंड किया, कौन सा टॉपिक आपके लिए डिफिकल्ट है, कौन सा टॉपिक आपके लिए इजी है, वेयर यू शुड फोकस मोर, वेयर शुड फोकस है। अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ योर टेस्ट विल बी गिवन टू यू एंड दैट इज द बेस्ट पास गाइज। जो आज मैं बताने वाली हूँ उन बच्चों के लिए जिनके पास तरीका नहीं है एनालाइज करने का, बट यहाँ पे क्रैश कोर्स में यू विल गेट ऑल द डिटेल एनालिसिस, हाउ अ पर्टिकुलर थिंग हैपन्स, व्हाट यू शुड डू। ठीक है, सो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट, टेस्टिंग्स। फिर नोट्स मिलते हैं, असाइनमेंट्स मिलते हैं हर सेशन के बाद में आपको, लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस। तो ये इंटरैक्टिव क्लासरूम्स में आपको डिटेल में समझाया जाता है, बहुत सारे इंटरैक्शंस होते हैं, ऑडियो वीडियो इंटरैक्शंस, क्विजेज, लीडर बोर्ड्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, ऑल योर डाउट्स विल बी इमीडिएटली क्लियर्ड बाय द क्लास टीचर प्रेजेंट। और अगर क्लास के बाद डाउट आता है तो क्या करेंगे मैम? तो बच्चों इसके लिए हमने मोबाइल ऐप दिया है, फ्रॉम मॉर्निंग 8 टिल नाइट 11, सुबह से रात तक भर भर के जितने डाउट्स पूछने भैया क्लियर करो, फोटो डालो, तुरंत आपको वहाँ पे सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, बाय वन ऑफ आवर क्लास टीचर्स, वो आपको तुरंत सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा। सो दिस इज लाइक जस्ट अनकम्पेरेबल। ठीक है, एंड दिस विल ऑल्सो हेल्प यू इन जेई एडवांस। अगर मेंस कर रहे हो तो फोकस हो सकता है एडवांस का, डेफिनेटली हेल्प करेगा। अगर मेंस आईआईटी नहीं भी फोकस है मान लो, बट अगर आपको किसी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है ना, ज़्यादा पैसे नहीं भरने प्राइवेट कॉलेज में, एक गवर्नमेंट कॉलेज में सीट मिल जाए बस नसीब बन जाए। ऐसे भी बहुत बच्चे होते हैं जिनको होता है कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, अपनी फीस कम से कम हो, 10, 20, 30 हज़ार में निकल जाए, हमको लाखों रुपए नहीं भरने। तो भैया ये क्रैश कोर्स हेल्प करेगा ना यार आपको, डेफिनेटली। आप चाहे आप कोई स्टेट लेवल सीईटी दे रहे हो, अपनी स्टेट का सीईटी, उसमें भी हेल्प करेगा। आप मेंस दे रहे हो तो मेंस के स्कोर से भी एडमिशन हो जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज में, जीएफआईटीज, है ना। सो इट्स गोइंग टू हेल्प यू एवरीवेयर, इट्स कम्प्लीटली इकोनॉमिकल। अगर आप एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ये जो पैसे आप भर रहे हो इस टाइम पे, दिस इज़ नॉट दैट यू आर स्पेंडिंग, इट्स योर इन्वेस्टमेंट, इट्स योर सेविंग्स विच यू आर डूइंग फॉर योर सेल्फ। आज का ये जो आप इसमें स्पेंड करोगे, आपको कुछ साल बाद इसका बेनिफिट भर भर के मिलेगा बच्चों। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, इसीलिए इतना ज़्यादा स्ट्रेस किया जा रहा है। एंड दिस इज़ जस्ट द वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर एवरीबडी हु इज़ लुकिंग फॉर आफ्टर 12th क्या करे अब तुरंत। ठीक है, सो टेस्टिंग पैटर्न सब कुछ स्ट्रक्चर्ड पैटर्न है, नथिंग टू वरी। ऐसा नहीं है कि सब ट्रायल मेथड है, इट्स ऑल टेस्टेड वेरी वेल। और अभी फिलहाल ये 40% डिस्काउंट पे चल रहा है, मेगा डिस्काउंट, जस्ट एट 6000। बच्चों 10,000 का कोर्स सिर्फ 6000 में आपको मिल रहा है। 3 सब्जेक्ट्स, यू आर जस्ट पेइंग 2000 पर सब्जेक्ट। बच्चों आप सिर्फ 2000 एक सब्जेक्ट को भर के अगर आपका रैंक बच्चों इंक्रीज हो सकता है, बूस्ट हो सकता है, तो वाई नॉट। द कोड इज VTCC, यानी कि वर्षा तिवारी क्रैश कोर्स। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। आई विल शो यू कैसे ये वीडियो के नीचे आपको जाना है। वीडियो के नीचे बहुत सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होता है, सेशन PDFs, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। नीचे आइए, ये देखो जेई का अगर आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज से अवेल करना है तो वो भी मिल जाएगा 40% डिस्काउंट, सेम कोड बाय मी, VTCC वर्षा तिवारी क्रैश कोर्स। और नीट टेस्ट सीरीज या फिर जेई क्रैश कोर्स पे लिंक पे क्लिक कर दो। ठीक है, एज सून एज यू क्लिक ऑन द लिंक, देखिए बैचेस शुरू हो रहे हैं। 24 मई को हुआ था
फिर 31 मई को 7 जून यानी कि कल से शुरू हो रहा है बच्चों, कल से भाई साहब अब तो एनरोल करना ही पड़ेगा। 7 जून वाले बैच में एनरोल कर लो फटाफट से, वरना भर जाएगा वो भी। देन नेक्स्ट चांस यू विल गेट इन जुलाई, 3 जुलाई, 7 अगस्त, 14 अगस्त, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ऑल 3 सब्जेक्ट्स। ठीक है, देखिए, बूस्ट योर रैंक, अपलोड अ पिक्चर ऑफ डाउट एंड गेट इमीडिएट आंसर्स, प्रूवन टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज, आपको मोटिवेशनल लेक्चर्स, स्ट्रैटेजी लेक्चर्स भी दिए जाएंगे बाय द टॉप ट्यूटर्स ऑफ वेदांतु। ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज इसके साथ फ्री मिलता है। अगर आप क्रैश कोर्स लेते हो तो आपको टेस्ट सीरीज इसके साथ फ्री, डाउट सॉल्विंग फ्री मिलता है। अलग अलग से पे करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है इस पर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे यू कैन जस्ट सिंपली यूज बाय नाउ। आपको ये दिख रहा है ऊपर 10,000 50% ऑफ, बाय नाउ। बाय नाउ पे क्लिक कर दो बस। बाय नाउ पे जैसे ही क्लिक किया, यू हैव सेव 4,000 रुपीज़ एंड ओके। ठीक है, यहाँ पे क्रेडिट, डेबिट, EMI, पेटीएम, जो भी आपके लिए कन्वीनियंट मेथड है वो मेथड से आप इसको पे करके क्रैश कोर्स में अवेल कर सकते हो। सो बैचेस स्टार्टिंग इमीडिएटली फ्रॉम 7th गाइज, यू कैन टेक द अपॉर्चुनिटी इफ यू वांट। ठीक है, सो दिस इज समथिंग दैट आई वांटेड टू से यू। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज सेशन। आज के सेशन में हम लोग क्या बात करने वाले हैं? 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एज आई डिस्कस। सो लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट थिंग, how do you self-analyze mock test? And the first important question that comes to my mind, is it important to analyze? Yes guys, क्या ज़रूरी है? मतलब एग्ज़ाम दे दिया, बात ख़त्म ना यार। मतलब बोला मेरे को, कोचिंग क्लास वालों ने बोला एग्ज़ाम देने को, मम्मी ने बोला एग्ज़ाम देने को, और ऑफलाइन क्लास वेदांतों ने बोला एग्ज़ाम देने को, मैंने दे दिया एग्ज़ाम, अब बस ना यार बात ख़त्म। उसके बाद क्या स्टोरी क्यों खींचना आगे, ख़त्म। तो भैया अगर आपने लाइफ में सुना रहेगा कि आपने एक गलती की, ठीक है, आपको कुछ काम दिया गया, एक टास्क सौंपा गया, यू मेड अ मिस्टेक, दैट्स ओके। यू मेड द सेकेंड मिस्टेक, सेम मिस्टेक अगेन सेकेंड टाइम, यू मेक द सेम मिस्टेक अगेन थर्ड टाइम, यू मेक द सेम मिस्टेक अगेन फोर्थ टाइम। क्या ऐसा करते हैं क्या हम लोग लाइफ में? नहीं करते। अगर एक बार गलती हुई तो हम लोग क्या करते हैं? उसके बारे में सोचते हैं कि ये गलत कैसे हुआ, क्यों गलत हुआ, और नेक्स्ट टाइम उसको रिपीट करने की नहीं करते कोशिश, है ना, रिपीट करने की कोशिश नहीं करते। हाँ, बहुत बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जो मतलब सेम गलतियाँ करते रहते हैं और फिर उनकी बहुत कुटाई भी होती है, वो अलग बात है। बट जनरली अपन जैसे नॉर्मल, अपन जैसे ना, अपन नहीं करते गलतियाँ। अपन चाहते हैं कि सेम मिस्टेक नहीं करें, हर बार नई मिस्टेक करें, वो चलेगा। मतलब हर बार अलग तरीके से मम्मी को परेशान करेंगे, सेम तरीके से करेंगे तो फिर बहुत कुटाई होगी, है ना, तो एक्सपेक्टेड नहीं होना चाहिए। तो वैसे यार टेस्ट में भी होता है। अगर आपने क्लासेस में या कोचिंग में, आपके वेदांतु में आपका फाइनल है CBSE या फिर JEE, ठीक है, ये आपका टारगेट है। उसके पहले आप साल भर में नहीं कुछ तो भी मिनिमम में बोलूँ अगर बच्चों, मिनिमम आप हर टॉपिक पे, आई एम नॉट टॉकिंग सब्जेक्ट पे, आप हर सब्जेक्ट पे तो पता नहीं कितने टेस्ट देते हो, बट हर टॉपिक पे, अगर मैथ्स की बात करूँ तो मैं मैट्राइजेस पे, डिटर्मिनेंट्स पे, हर टॉपिक पे कम से कम 5 टाइम्स यू हैव गिवन अ टेस्ट। दिस इज मिनिमम। अगर आप वेदांतु में बात करोगे तो बहुत ज़्यादा बार होता है, बिकॉज एंड में हम लोग 5 से 10 तो मॉक टेस्ट ही होते हैं, फुल चैप्टर टेस्ट, हाफ पोर्शन टेस्ट, फुल पोर्शन टेस्ट, इतने होते हैं। बट आई एम सेइंग मिनिमम। आपने कुछ बीमार हो गए, कुछ स्किप कर दिया, कुछ मस्ती आ गई, 5 बार तो देते ही हो, और फिर फाइनल एक CBSE और JEE में डायरेक्ट अटेम्प्ट करते हो, तो हर चैप्टर का टेस्ट आप इतने बार देते हो, 5 बार आपके पास 5 लाइफ लाइन्स है। आप कोई भी गेम खेलते हो आपके पास लाइफ लाइन होती है, वैसे ही ये भी रियल लाइफ गेम है। यहाँ पे भी आपके पास लाइफ लाइन होगी कि 5 बार आप मिस्टेक कर सकते हो, बट ये 6th टाइम पे अगर मिस्टेक करोगे तो गेम से आउट हो जाओगे। ठीक है, तो ये अपने गेम का रूल है बच्चों, ये गेम का रूल है। अब ये 5 बार में आप मिस्टेक क्या 5 बार करोगे? नहीं यार, हम तो कोशिश करेंगे यार 1 बार 2 बार 3 बार करके हम मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। एंड हाउ डू वी डू दैट? सो गाइज, आई एम गोइंग टू शेयर सम ऑफ द वेरी लॉजिकल एक्सपीरियंसेस विथ यू गाइज। सो ऑल 4 सब्जेक्ट्स, साइंस की बातें कर रहे हैं, हमने टेस्ट दे दिया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, बल्ले बल्ले करके खुश होके आ गए, टेस्ट देकर आ गए। अब आपको टेस्ट, द पर्सन हु गिव्स द टेस्ट नोज द बेस्ट कि उसने कैसा परफॉर्म किया है। अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि मैंने क्या परफॉर्म किया है तो भैया बात अलग है, फिर तो आप अलग ही कैटेगरी के हो कि ये भी नहीं पता मेरा पेपर कैसा गया है, मतलब आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है टॉपिक का। लेकिन हाँ, अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होता है, यू गेट एन आइडिया कि आपका टेस्ट कैसे गया है। तो फिर क्या करें? अगर आपका टेस्ट अच्छा गया है तो बहुत अच्छी बात है यार, नथिंग लाइक इट, जस्ट चिलैक्स,
है ना, अगले टेस्ट की तैयारी करो। लेकिन अगर पेपर खराब गया है फिर क्या किया जाए? क्या फिर चिलैक्स मारे अगले टेस्ट की तैयारी करें और फिर वही मिस्टेक करें, फिर अगले टेस्ट की तैयारी करें, फिर वही मिस्टेक करें? नहीं, ये तो हो जाएगा डोंकी वर्क, ये तो हो जाएगी गधा मजूरी। हम ऐसा नहीं करेंगे। सो द फर्स्ट थिंग दैट वन शुड डू इज री अटेम्प्ट द पेपर। अब इसके पीछे मैं बहुत सारी लॉजिक बताने वाली हूँ। री अटेम्प्ट द पेपर, क्या घर पे आके एक पेपर री अटेम्प्ट करना है? देखो बच्चों, इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। आई हैव सीन स्टूडेंट्स, मेरे स्टूडेंट्स, मैं अपने स्टूडेंट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करूंगी, ठीक है। अब मेरे 3 टाइप्स के बच्चे हैं। एक टाइप के बच्चे जो ऐसे हैं ना, उन लोग जब री अटेम्प्ट करते हैं पेपर, दे सॉल्व एंड द पेपर गोज वेरी वेल, द पेपर इज वेरी गुड फॉर देम। जब वो घर पे सॉल्व करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा जाता है उनका। क्या आप रीज़न बता सकते हैं कि एग्जाम में नहीं अच्छा गया, घर पे बहुत अच्छा गया? तो हो सकता है कि उनको टाइम फैक्टर होता होगा, मतलब टाइम फैक्टर इज़ वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से एग्जाम में प्रेशर में आके नहीं अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन वही घर पे टाइम कंस्ट्रेंट नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब 3 घंटे का पेपर है, घर पे 6 घंटे में कर, 8 घंटे में कर, तेरे ऊपर है, बस कॉपी मत कर, बट खुद से कर, जितना टाइम लेके करना है, कोई प्रेशर नहीं, कोई चेक नहीं करने वाला है। और अगर इस सिचुएशन में आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, इसका मतलब कि आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, व्हाट यू हैव टू डील। आपका प्रॉब्लम छोटू सा है, और वो प्रॉब्लम ये है कि यू आर नॉट इन द हैबिट ऑफ सॉल्विंग अ पेपर विद इन द गिवन टाइम। आपको वही बहुत ज़्यादा टाइम दिया, आप कर लोगे, प्रेशर निकाल दिया आपके ऊपर से तो आप कर लोगे काम, प्रेशर दे दिया तो आप नहीं कर पाते। तो एटलीस्ट इस केस में ये टेंशन नहीं है कि आपको आता नहीं है, बस छोटा सा वरी ये है कि अब आपको प्रेशर को डील करना सीखना पड़ेगा। तो घर पे ही फिर आप धीरे धीरे क्वेश्चंस जब सॉल्व करोगे, लिखोगे, आप टाइमर लगा लगा के उसको सॉल्व करना शुरू करोगे। देखो बच्चों, कभी भी प्रॉब्लम है ना तो वो सोल्यूशन ढूंढने पे मत जाओ, पहले देखो प्रॉब्लम क्या है यार। प्रॉब्लम, आइंस्टाइन जैसे बोलता है कि इफ़ यू हैव अ क्वेश्चन, आइंस्टाइन सेज आई वुड लाइक टू स्पेंड 30 मिनट्स ऑन द क्वेश्चन एंड 5 मिनट्स ऑन द सोल्यूशन। अब ये मैंने एक वेग नंबर लिया है, वो बोलता है वो 1 दिन क्वेश्चन पे स्पेंड करेगा और 5 मिनट सोल्यूशन पे। हम तो 1 दिन करने वाले हैं नहीं। तो आप प्रॉब्लम ढूंढने में ज़्यादा टाइम लगाओ कि आपका पेपर खराब गया, ठीक है, योर पेपर वेंट बैड, तो उसका रीज़न क्या है? तो एक रीज़न हो सकता है कि प्रेशर, टाइम प्रेशर हो सकता है। आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर है बट टाइम प्रेशर की वजह से आपने ख़राब कर दिया। टाइम प्रेशर नहीं है तो आप अच्छा करो, तो उसका सोल्यूशन क्या है? आप सोल्यूशन भी देखते हैं यार, प्रॉब्लम पता चला तो सोल्यूशन भी पता चल सकता है। सोल्यूशन ये होगा कि स्लोली एंड स्टडीली यू शुड अडेप्ट योर माइंड टू वर्क अंडर प्रेशर। तो आप घर पे ही जब क्वेश्चंस करोगे तो आप उसको टाइम लिमिट दे देकर करोगे कि ये क्वेश्चन है 10 मिनट से ज़्यादा नहीं दूंगा मैं, क्योंकि आप घर पे कर रहे हो उसको फुर्सत में आधे घंटे में, आपको फील आ रहा है हाँ मेरा तो टॉपिक हो गया, मैंने तो कर लिया। फिर एग्जाम में वही क्वेश्चन आ रहा है, आपको आ ही नहीं रहा है करने, पेपर ही छूट जा रहा है, फिर आपको फील आता है ये ले मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है। तो आप फिर खुद से ही बेवकूफ़ बना रहे हो, खुद ही गेम खेल रहे हो, आपको ही नहीं पता चल रहा, आप फंसते जा रहे हो, खुद को ही फंसाते जा रहे हो, रादर खुद को ही आप फंसाते जा रहे हो। तो ये फंसाना बंद करना पड़ेगा अपने को। प्रॉब्लम समझो, आपको अगर कॉन्सेप्ट आता है, प्रेशर का प्रॉब्लम है तो प्रेशर में काम करना सीखेंगे, धीरे धीरे घर पे खुद को ही प्रेशर देंगे, खुद को ही टाइम लिमिट देकर क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। विद इन अ टाइम लिमिट इफ यू स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन, वेल एंड गुड, आप आगे निकल जाओगे। सेकेंड टाइप ऑफ स्टूडेंट्स ये होता है ना कि घर पे भी वो करता है सब कुछ, लेकिन उनको टाइम ज़्यादा लगता है, दे टेक मोर टाइम, ठीक है, मोर टाइम। तो इसका ये मतलब नहीं कि उनको एग्जाम फियर था या प्रेशर का ये था, बट उनके जो मेथड थे वो लेंदी थे। क्या प्रॉब्लम था? उनका लेंदी मेथड था। फर्स्ट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स जो मेरे थे, उनको कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम नहीं था, बट उनको एग्जाम प्रेशर में काम करना नहीं आता था, तो वो प्रेशर में आके नहीं कर पा रहे थे, लेकिन घर पे करते हैं तो हो जाता है, तो उनको प्रेशर का इशू था। सेकेंड टाइप ऑफ स्टूडेंट जो है ना, उनका कॉन्सेप्ट भी बहुत सही है, सब कुछ सही है, लेकिन उनको क्या है ना, लेंदी मेथड पता है। अब वो सेम पेपर एग्जाम में करते, पेपर छूट जाता है यार, लेकिन घर पे कर रहा है तो घर पे भी छूट जा रहा है। तो मतलब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि फिर देन दे आर नॉट हैविंग द अप्रोप्रिएट मेथड। सो सोल्यूशन ये है कि उनको शॉर्टकट्स देखने पड़ेंगे, या फिर बेटर वेज दे विल हैव टू सी, बेटर वेज टू कंप्लीट द पेपर इन टाइम। दैट इज द सेकेंड कैटेगरी। और थर्ड कैटेगरी वाले स्टूडेंट बहुत डेंजरस, मतलब फर्स्ट और सेकंड मैनेजेबल है, थर्ड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स जो घर पे भी पेपर सॉल्व करते हैं, दे आर अनेबल टू सॉल्व, घर पे भी दे आर
अनएबल टू सॉल्व द पेपर, ठीक है, एक बार देख लूँ मैं, यस। तो अब इसका मतलब क्या, अनएबल टू सॉल्व मतलब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है उनके कॉन्सेप्ट में, और सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन है नाउ दे हैव टू क्लियर दोज कॉन्सेप्ट यूजिंग वीडियो लेक्चर्स, है ना, बाय सेल्फ प्रैक्टिस, लॉट ऑफ सेल्फ प्रैक्टिस, ज़्यादा टाइम डेडिकेट करके उनको वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब कॉन्सेप्ट में ही प्रॉब्लम है भैया, फंडा ही नहीं आता, तो ये करना पड़ेगा। अब फोर्थ कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे, ऐसे होंगे जिनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो उनके बारे में हम क्यों केयर करें यार, हम भी छोड़ देते हैं उनको। आप किस कैटेगरी में आते हो ये बताओ, क्या आप प्रेशर में नहीं करते, बाद में कर लेते हो, या फिर आपको आता है, आपको लगता है आपको आता है, बट फिर भी पेपर ही नहीं साला कंप्लीट होता हर बार। तो इसका मतलब कि यार कुछ आपको अच्छे मेथड्स ढूंढने पड़ेंगे पेपर टाइम पे कंप्लीट करने के, थोड़ी प्रैक्टिस और करनी पड़ेगी। थर्ड, अनेबल टू सॉल्व मतलब कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है, तो आपको वीडियो लेक्चर्स वगैरह से क्लियर करना पड़ेगा। सो री अटेम्प्टिंग द पेपर के आपको प्रॉब्लम्स ढूंढना है, ठीक है, प्रॉब्लम्स ढूंढना है और उसके सोल्यूशन की तरफ काम करना है, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। नाउ व्हाट इज द सेकंड थिंग, सेल्फ एनालिसिस। ये सेल्फ एनालिसिस भी बड़ा इंपॉर्टेंट है हर टेस्ट में। सी इन दिस जर्नी ऑफ 2 years, स्टूडेंट्स हु आर इन 11th, अब आप ये 2 साल की जर्नी में आप एंट्री मार रहे हो, स्ट्रैटेजी बड़ा डिफरेंट होगा। आपने 10th में बहुत तोड़फोड़ स्ट्रैटेजी देखी होगी, आई नो, बट ये 11th 12th की स्ट्रैटेजी बहुत अलग है। अब 10th की स्ट्रैटेजी भूल जाओ, आप नई वाली स्ट्रैटेजी को आपको अपनाना पड़ेगा। क्या है नई स्ट्रैटेजी बॉस, नई स्ट्रैटेजी, एवरी चाइल्ड इज़ डिफरेंट, एवरी चाइल्ड इज़ डिफरेंट, हर एक का तरीका अलग होता है। मतलब कि अगर मैं जेई पेपर की बात करूँ, जेई, तो कुछ बच्चों को फिजिक्स ईजी लगता है, कुछ बच्चों को केमिस्ट्री, कुछ बच्चों को मैथ्स ईजी लगता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे मैथ्स ईजी लगता है, आई विल गेट इनटू द एग्जाम और मैं मैथ्स सॉल्व करना शुरू कर दूंगी, ले धड़ाधड़ मैथ्स सॉल्व किया मैंने। लेकिन उस साल जेई में मैथ्स का पेपर बहुत टफ आ गया बॉस, इतना टफ आ गया पेपर, फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत ईजी आया, है ना, ये दोनों पेपर ईजी आ गए, मैथ्स टफ आ गया। अब मैं तो फंस गई ना यार, मेरे को मैथ्स पसंद है इसलिए मैं मैथ्स पे टूट पड़ी हूँ, लेकिन मैथ्स का पेपर टफ है, मुझे स्कोर तो मिल नहीं रहा है, फायदा क्या यार, आई एम स्पेंडिंग दैट मच टाइम बट आई एम नॉट गेटिंग द आउटपुट। वेयर एज अगर मैं फिजिक्स केमिस्ट्री करती, क्वेश्चंस ईजी है, मैं फटाफट ज़्यादा क्वेश्चंस कर पाती, मुझे ज़्यादा स्कोर मिलते। सो दिस इज़ अबाउट योर स्ट्रैटेजी, कि आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। जब भी आपके पास क्वेश्चन पेपर आता है, यू हैव टू गो थ्रू द क्वेश्चन पेपर एंड प्रिपेयर योर ओन स्ट्रैटेजी। इसके बारे में मैं थोड़ा और डिटेल में बात करूंगी, बट व्हेन टॉकिंग अबाउट सेल्फ एनालिसिस, इसमें भी अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। आप किस कैटेगरी में, मुझे ज़रा बताना। एक टाइप के स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं ना, जो एग्जाम हॉल में एंट्री मारते हैं पेपर लिखना, तो 3 स्टेजेस होते हैं ना अपने, मतलब एग्जाम के फर्स्ट हाफ में वो बड़े ठंडे होते हैं। क्या होता है, ठंडे, मतलब उनको टेंशन नहीं फील होता है। स्टार्टिंग में उनका दिमाग भी इतना तेज काम नहीं करता है, मतलब मेरे को कोई पेपर दे दे स्टार्टिंग में तो मैं फुल मोड में नहीं आती, जोश में नहीं आती, एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो बहुत ठंडे होते हैं स्टार्टिंग में। फिर धीरे धीरे ना जैसे जैसे टाइम बढ़ता है उनका जोश भी बढ़ने लगता है, एकदम लास्ट में एकदम हाइपर एक्टिव हो जाते हैं वो। मतलब जैसे जैसे टाइम कम होती है उनको बहुत सारे फॉर्मूलेज याद आने लगते हैं, बहुत सारे इक्वेशंस याद आते हैं और सारे क्वेश्चन सॉल्व होने लग जाते हैं अपने आप टाइम के प्रेशर से। तो क्या आप इस कैटेगरी के हो? या फिर सेकेंड टाइप ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं कि जिनको स्टार्टिंग में, बिकॉज वो फ्रेश पढ़ के गए, बहुत जोश में होता है, स्टार्टिंग में एकदम जोश, फुल ऑन जोश, हाई एनर्जी, लेकिन फिर जैसे जैसे ना टाइम बढ़ता है उनकी एनर्जी भी लेस होते जाती है। ये सेकेंड टाइप। आप किस में फिट होते हो? थर्ड वाले टाइप के कुछ ऐसे होता है, मतलब वो स्टार्टिंग में वो स्लोली इंक्रीज करता है, ठीक है, ठंडे, देन स्लोली इंक्रीज होता है उनका। ये जो कैटेगरी, ये बिल्कुल ही ठंडा है, मतलब एकदम एंड में वो हाइपर एक्टिव होते हैं, बट ये जो है ना ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, मतलब स्टार्टिंग में फिर धीरे धीरे अच्छे से इंक्रीज होता है। ये काफ़ी कांस्टेंट, ग्रेजुअल इंक्रीज बोलना चाहिए, कांस्टेंट इंक्रीज नहीं बट ग्रेजुअल इंक्रीज। तो फिर ये 3 टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। अब अपने को फिगर आउट करना है अपन कौन से कैटेगरी में फिट होता है, क्योंकि हर बच्चा अलग है और ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा बेटा कि वो तीनों, मतलब पूरे के पूरे थ्रू आउट 3 घंटे के पेपर में इक्वल एनर्जी का हो। नहीं, ब्रेन गेट्स टायर्ड यार, एवरीबॉडीज ब्रेन गेट्स टायर्ड। आई एम ऑफ अ डिफरेंट टाइप, यू आर ऑफ अ डिफरेंट टाइप। तो ऐसा कोई नहीं है जो तीनों के पूरे 3 घंटे बहुत फुल ऑन एनर्जी में होगा और ब्रेन इक्वली एफिशिएंटली काम करेगा। तो अपना ब्रेन कब सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होता है, ये अपने को फिगर आउट करना है ये टेस्ट के बाद। दिस इज द एनालिसिस दैट यू ऑल शुड डू नाउ।
ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइप ऑफ स्टूडेंट हो कि जो सिर्फ प्रेशर में हाइपर एक्टिव होते हो, तो ईजी में आप सारे स्टार्टिंग में आप सारे ईजी क्वेश्चंस लोगे, बिकॉज आपका ब्रेन भी ज़्यादा काम नहीं कर रहा है, तो ईजी क्वेश्चंस करो। और जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस है वो आप एंड में करने लगो, क्योंकि अब तब आपका दिमाग एकदम काम कर रहा है। और अगर आप सेकंड टाइप के स्टूडेंट हो जो पहले एकदम जोश में होता है, सब याद होता है, और एंड में मतलब ठंडे हो जाता है, तो आपको स्टार्टिंग में डिफिकल्ट क्वेश्चंस करने होते हैं, है ना। बिकॉज मतलब डिफिकल्ट यानी कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज़्यादा वेटेज वाले वो कर लो, क्योंकि बाद में ब्रेन फिर एकदम ठंडा होने लग रहा है, फिर अपना ब्रेन थोड़ा थोड़ा थक भी रहा है, सोचने की कैपेसिटी भी कम हो रही है, तो एंड में अपन ईजी वाले क्वेश्चंस खत्म करके पेपर सबमिट करेंगे। दिस इज मेनली एप्लीकेबल फॉर जेईई, नॉट फॉर बोर्ड्स। बोर्ड्स की स्ट्रैटेजी अलग होती है, जेईई की बात कर रही हूँ मैं, है ना, जेई पेपर में जब आप जाते हो। और थर्ड मतलब आप कॉन्स्टेंटली वार्म अप करके थोड़ा इंक्रीज करते हो, तो फिर आपको ईजी, एवरेज एंड डिफिकल्ट ये फ्लो में जाना चाहिए, ठीक है। ईजी, एवरेज एंड देन डिफिकल्ट क्वेश्चंस। तो कौन से कैटेगरी में अगर आपने एक बार एनालिसिस कर लिया, तो ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं बच्चों, जो आपको स्ट्रैटेजाइज करने में हेल्प करते हैं। दीज आर द साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, यस। बहुत सारे बच्चे ना बच्चों ऐसे भी होते हैं, ये जो पिछला वाला पॉइंट मैंने बोला ना, रीअटेम्प्ट द पेपर, टाइम प्रेशर एंड ऑल, तो दिस इज अ साइकोलॉजिकल इशू। इनको एग्जाम फियर करके होता है, कुछ एग्जाम फोबिया या एग्जाम फियर, कि भैया आता है सब कुछ लेकिन एग्जाम फियर की वजह से कर नहीं पाते। तो वो एग्जाम फियर को निकालने के लिए आपको टीचर से बात करना पड़ेगा, अपने कलीग से, स्टूडेंट से, मम्मी पापा से, किसी से भी बात करो, बट वो एग्जाम फियर को निकालो, बिकॉज यू नो एवरीथिंग। बस वो टाइम की वजह से आप घबरा जाते हो, घर पे कर लेते हो, है ना, ऐसी बात होती है। फिर लास्ट एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट आई वांट टू टॉक टू यू इज मेंटेन द डेटा और रिकॉर्ड। व्हाट डेटा और रिकॉर्ड इज इट टॉकिंग अबाउट? द डेटा कि आपका हर टॉपिक में से विच इज़ योर स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट। सबसे पहले आप फिगर आउट करोगे योर स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट, ये सबसे पहले आपको फिगर आउट करना है। PCM कैसे फिगर आउट करोगे? आप हर बार टेस्ट दे रहे हो PCM का या बी भी दे रहे हो, तो आपको किस में अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं, लेस एफर्ट्स मोर मार्क्स, तो वो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट है। एक बार स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट पता चल गया, मतलब आपको आइडिया मिल जाता है कि कहाँ पे आपको एफर्ट ज़्यादा लगाने, कहाँ पे आपको एफर्ट्स कम लगाने। अगर मैथ्स आपका स्ट्रॉन्गेस्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री वीक है, तो वहाँ पे ज़्यादा आपको एफर्ट्स लगाने, दैट इज़ फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, यू विल हैव टू इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, अब आप सब्जेक्ट के अंदर आ जाते हैं, आपको वीक टॉपिक्स एंड स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स निकालने पड़ेंगे, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स एंड वीक टॉपिक्स, है ना, ये फिगर आउट करना पड़ेगा। क्यों भाई? क्योंकि स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है, आपको पता चला कि यार आपका ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रॉन्ग है, और आप जब रिवीजन करने बैठ रहे हो बार बार ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करो, बार बार ट्रिग्नोमेट्री जो स्ट्रॉन्ग है उसी पे पढ़े जा रहे हो, भैया ये थोड़ी आपका इंक्रीज करेगा मार्क्स, है ना। अब ट्रिग्नोमेट्री में से 3 क्वेश्चन आने वाले हैं, आपका भले वो स्ट्रॉन्ग है और आप बार बार उसको पढ़ रहे हो, ऐसा तो है नहीं कि जेई वाले उसमें से अब 8 क्वेश्चन निकालेंगे, आएंगे तो 3 ही क्वेश्चन, चाहे आप एक बार उसको पढ़ो या 10 बार पढ़ो। अब आपको आता है तो आता है भाई, साइड में कर दो उसको, इंपॉर्टेंस जितना है उतना ही अपने को उसको टाइम डेडिकेट करना है। तो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स और वीक टॉपिक्स जब आप सेग्रीगेट करोगे, तो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स पे आपको कम टाइम देना है, वीक टॉपिक्स पे ज़्यादा टाइम देना है, बिकॉज उसमें से जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपको छोड़ने नहीं है, वो भी तो कवर करने हैं। तो दैट इज़ द सेकेंड थिंग। थर्ड थिंग, जो कॉमन मिस्टेक होता है बच्चों का, फेवरेट टॉपिक। जो टॉपिक फेवरेट है पढ़ते बैठेंगे उसी को, है ना, ये फेवरेट है मेरे को, ये बहुत पसंद है। सपोज किसी बच्चे को प्रोबेबिलिटी पसंद है, वो प्रोबेबिलिटी करते बैठेगा दिन भर रात भर, मतलब जब देखो बुक खोलेगा तो उसका मन अपने आप, उसका हाथ जो है ना प्रोबेबिलिटी के पेज पे चला जाएगा। तो ये भी तो एक गलत बात है कि आप एक ही टॉपिक कर रहे हो। अगेन सेम थिंग, यार जेई वाला उसमें से 10 क्वेश्चन तो नहीं देगा ये सोच के कि चलो भैया ये जो स्नेहा है उसने प्रोबेबिलिटी किया तो चलो इस बार प्रोबेबिलिटी से ज़्यादा क्वेश्चन देंगे, ये तो नहीं होने वाला भाई। तो उतना ही टाइम दो जितना, अपने फेवरेटिज्म को अपने पास रखो, भले वो आपके लिए फेवरेट है, अपनी इच्छा को दबाओ। आप ये देखो कि एग्जामिनर का फेवरेट क्या है, ठीक है, यू हैव टू चेक एग्जामिनर्स फेवरेट टॉपिक, दैट इज़ योर थर्ड थिंग, एग्जामिनर्स फेवरेट टॉपिक, और उस पर फिर आपको ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है। सो दिस मेंटेनिंग द डेटा और रिकॉर्ड में ऑल आई वांट टू सी इज कि आपको फाइंड आउट करना है आपके लिए कहाँ ज़्यादा आप अपना टाइम डिवीजन करोगे और कहाँ कम। दिस इज़ अबाउट टाइम डिवीजन, ठीक है। जब आपके पास ये डेटा होगा, हर टेस्ट का डेटा होगा, ठीक है, आपने टेस्ट अपीयर किया और आपके पास मार्क्स आ गए,
तो बाय द एंड जब आप पूरा चेक करोगे तो आपको खुद पता चलेगा ये टॉपिक में आपको कम मिल रहे हैं, ये टॉपिक में ज़्यादा मिल रहे हैं. सो वो डेटा से यू विल फाइंड आउट कि आपको टाइम डिवीजन कहाँ पे ज़्यादा करना है, कहाँ पे कम करना है. ठीक है गाइस. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ कंसेप्ट वाइज ट्रैकिंग, सिंपल मिस्टेक्स होते हैं, कॉमन मिस्टेक्स, वो हम करते हैं, उसके बारे में भी मैंने लिख दिया है. तो टॉपिक वाइज ट्रैकिंग, कॉन्सेप्ट वाइज ट्रैकिंग अपने को रखना पड़ेगा. ये दिस ट्रैकिंग्स आर गोइंग टू रियली हेल्प यू इन दिस 2 years पीपल. अगर आपने ये ट्रैक नहीं रखा, आप सोच रहे हो बस टेस्ट दे दिया काम खत्म हो गया, नहीं होने वाला काम खत्म. दैट इज गोइंग टू बी अ बिग डिजास्टर ऑफ योर 2 years. लेट मी टेल यू दिस विल बी योर डिजास्टर अगर आपने एक ट्रैक नहीं मेंटेन किया. सो मेंटेनिंग अ प्रॉपर ट्रैक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस 2 years. सो कीप अ ट्रैक ऑफ योर सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, and make sure that you analyze your papers, where are you losing your marks, where are you gaining your marks, है ना, वो देखिए. और फिर रीज़न फाइंड आउट करिए. रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, कुछ हमने डिस्कस किए, साइकोलॉजिकल इश्यूज, कुछ टाइम प्रेशर्स, कुछ टाइम फैक्टर, कुछ मेथड में प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ कंसेप्ट्स में प्रॉब्लम हो सकता है. आपको कंसेप्ट पता है बट मेथड नहीं पता है. दिस थिंग्स कैन हैपन. कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, conceptual, rushing through, being focused between two closely linked or overlapping subjects, not scanning the question paper well. मतलब स्ट्रैटेजी नहीं बना रहे हो, पहले आप अपने फेवरेट टॉपिक्स कर रहे हो, बाकी का ईजी है, जो टफ है वो कर रहे हो. सो लॉट ऑफ रीजन्स कैन बी देयर. ऑल यू कैन डू इन ऑल आई कैन से इज अ गुड टाइम मैनेजमेंट, अ गुड रिविजन, अ गुड लर्निंग फ्रॉम योर प्रीवियस टेस्ट. जो पिछला मॉक टेस्ट हुआ है उसमें से एक लर्निंग उठाओ और अगले मॉक टेस्ट में डू नॉट मेक द सेम मिस्टेक. दैट इज द कंक्लूजन ऑफ टुडेज क्लास गाइज. आई होप यू लाइक द सेशन, यू लव द सेशन, यू लर्न सम ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट यू एंड मेक श्योर कि ये तीनों पॉइंट्स को आप फॉलो कर रहे हो. टेल मी इन द कॉमेंट बॉक्स कि आपको कौन सा, आप किस कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट में आते हो और आप क्या मेथड अप्रोच करोगे इन ऑर्डर टू इम्प्रूव योर सेल्फ. डू लेट मी नो वेदर यू फाउंड दिस टॉपिक यूजफुल फॉर यू. क्या ये टॉपिक आपको हेल्प किया और आप मुझे से और क्या टॉपिक चाहते हो. डू लेट मी नो गाइज. दिस माई इंस्टाग्राम एंड मेल ID. फील फ्री टू कनेक्ट विथ मी एंड दिस क्रैश कोर्स डिटेल्स आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट. Like the video and share it with your friends. Help them also to self-analyze mock test. Most importantly for the YouTube students, how you should be analyzing yourself. It's the most important thing. And for now, I would like to thank you all. Have a great day. Keep smiling people and keep enjoying. And bye-bye. See you. Take care, my little kittle puffies.